Yeah, hello students. So let us continue our topic, drug abuse and addiction. And we have discussed about the tranquilizer, about the sedative and hypnotics, and about the opiates. The next drug which we are going to discuss are cannabinoids, and cannabinoids are the derivatives of hemp plant. See, cannabinoids are hallucination drug, and hallucinating drug are known as psychedelic drug. So before really starting cannabinoids, let me give you the concept of psychedelic drug and what are hallucinating drug. Then one more psychotropic drug has been left, which are stimulants, and we will be covering that later on. So first let us discuss what are psychedelic drug. So as I told you earlier on, psychedelic drugs are those which are commonly known as hallucinogens, Now what exactly a hallucinating drug is? If I define hallucinating drug, the definition would go a drug which can change one's behavior and thought, feeling and perception without any actual stimulus. So let me write the definition here. What a hallucinating drug? A drug which can change one's behavior, feeling, thought or perception without actual stimulus, without any actual stimulus. So when we are not getting any stimulus and our thought and perception and behavior is getting changed, those drugs are referred as to hallucinating drug. Or I can say that hallucinating drug produce a dream-like state with the disorientation of loss of contact with reality without any true sensory stimulus. So they produce a dream-like state with disorientation with reality without any actual sensory stimulus, is that clear? So a drug which produce dream-like state with disorientation with the reality, disorientation or loss of contact, I can say. Nobody is touching me right now, I am so unhappy, but I am still feeling that somebody is touching me. That could be a hallucinating effect. Is that clear? Hallucinating drug are simply referred, a condition is developed when patient used to see sound, and it hear vision. See, this is something very funny to write here, but a imaginary condition. When a patient starts seeing sound, it's not like he's seeing the sound waves, it's like certain imaginary thought. Or these drugs are also known as vision producing drugs, आप लोगों ने देखा होगा, there are certain mental condition जिसके अंदर लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई देनी शुरू कर जाती है. One of the effect of that is hallucinating drug. One of the reason of that condition is hallucinating drug. So any drug which has been causing a change in one's behavior, feeling, thought or perception without actual stimulus, they used to produce a dream-like state. Patient start seeing sound and he start hearing colors. The actual word which we use in books is see sound and hear color, right? And which are commonly known as vision producing drug are hallucinating drug. So I can say a hallucinating drug produce false imaginations
or extreme feeling of either despair. Despair is a word which refers to absence of hope, or euphoria, which is intense excitement or happiness, by affecting our cerebrum or sense organ. So one more important point about this drug, that they produce false imagination. They produce false imaginations. It could be imagination of loss of hope, or it could be imagination of excessive happiness due to their effect on cerebrum or other sensory structures. So that false imagination stage is developed, or that feeling of extreme despair or extreme euphoria is developed due to effect of this drug on cerebrum, or due to effect of this drug on our sensory receptors. So that is the concept of my marker broken down. That is the concept of your hallucinating drug. So any drug which is vision producing can change our behavior, thought, perception, and produce a dream-like state or imaginary thought is referred as to hallucination drug. अब जब हमने hallucination drug स्टार्ट कर ही दिया है, तो पहले मैं 3 अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूँ hallucinating ड्रग के, देन हम शुरू करेंगे कैनाबिनोइड्स. कैनाबिनोइड्स भी hallucinating ड्रग में आता है. कैनाबिनोइड्स भी hallucinating ड्रग में आता है. तो 4th एग्जाम्पल वुड बी द कैनाबिनोइड. तो जो पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे डेट वुड बी LSD, द मोस्ट पोटेंट hallucinating ड्रग. LSD क्या होता है फुल फॉर्म, और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या इफेक्ट, hallucinating ड्रग के इफेक्ट इन द एंड पढ़ लेंगे. देन सेकंड पढ़ेंगे हम मेस्कालाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पढ़ेंगे हम साइलोसाइबाइन, एंड फोर्थ पढ़ेंगे हम कैनाबिनोइड्स. तो लेट मी स्टार्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ hallucinating ड्रग और साइकोडेलिक ड्रग. द मोस्ट पोटेंट hallucinating ड्रग, और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कि भाई LSD के बारे में बताइए, LSD किस कैटेगरी में आती है. तो लेट स्टार्ट विद LSD. द फर्स्ट hallucinating ड्रग इज lysergic acid diethylamide. It is the first hallucinating drug. It is lysergic acid diethylamide. तो कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है सिंपली, lysergic acid diethylamide. अब इस ड्रग के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको. सबसे पहले आपको याद रखना है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल hallucinating drug. That is most powerful hallucinating drug. The first point and important point which worth remembrance, it is most powerful hallucinating drug. क्लेविसेप्स परप्यूरा का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये उससे एक्सट्रैक्ट होता है, hallucinating drug. नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि ये नेचर में कैसा होता है. नेचर में ये इट्स ए एल्कोलॉइड which is crystalline in nature. It's a alkaloid, it's a crystalline alkaloid. अगर इसके सोर्स की बात करें, if we talk about its source, तो as I was telling you, see there is a fungus which is parasite on rye plant. There is a fungus Claviceps purpura that is parasite on rye plant. तो आप I will mention it is obtained फ्रॉम एरगट. कई बार ना क्वेश्चन वगैरह में लैंग्वेज पूछ लेता है कि भाई जो LSD होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एरगट. एरगट क्या होता है? इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस. इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस का नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरा. फंगस का नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरा. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई कैमरामैन. ही इज हेल्पिंग अस अ लॉट.
वीडियो जूम होने के बाद इजिली आई गेस आपको विजिबल हो जाता होगा, ठीक है। और क्लेविसेप्स पर्प्यूला किसके ऊपर पैरासाइट होता है? जस्ट टोल्ड यू इट्स ए पैरासाइट ऑन राई प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो LSD होता है उसका सोर्स क्या होता है, तो आप याद रखेंगे उसका जो सोर्स होता है वो एक फंगस होता है, और फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, फंगस का नाम होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूला, और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है उससे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे यूज किया जाता है? इट इज ऑलवेज स्मोक्ड, दिस LSD ड्रग इट इज ऑलवेज smoked, and as I told you it causes the most powerful hallucinating effect. It is always smoked and it causes most powerful hallucinating effect. क्या क्या effect होते होंगे? Have you ever heard about horrible dreams? One of the major side effect or one of the major effect of LSD addiction is horrible dreams. Patient might be having emotional outburst as well. Patient might be having long term psychosis. So जो it is always smoked and it causes horrible dreams. Then I told you about emotional outburst. I also told you about chronic psychosis. So these are the certain conditions which has been caused due to addiction of LSD. And don't forget, a chronic addiction of LSD can result in CNS damage. It can even result in that mental problem, right? Nervous breakdown could be there or CNS damage could be there. Nowadays, scientists have also discovered that a person who has been having LSD addiction, if there is a female who is having LSD addiction, she might be having fetal abnormalities. And in an individual it also causes chromosomal abnormality. So it was mentioning here it also causes chromosomal and fetal abnormality. Chromosomal and fetal abnormality. ठीक है बेटा। तो LSD के बारे में याद रखना, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड नाम होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूला का, वहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, हमेशा स्मोक होगा, हॉरिबल ड्रीम्स करता है, इमोशनल आउटबर्स्ट करता है। एंड अच्छा एक और चीज़, अगर कोई पेशेंट इसका एडिक्ट है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है पता करने का? ही इज़ नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली एंड ही इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली। सो डिसओरिएंटेशन इन राइटिंग एंड ड्रॉइंग is a characteristic symptom of a LSD addict. LSD addict can be, point out को क्या कहेंगे? LSD addict can be recognized with disorientation in writing and ड्राइंग कैपेबिलिटीज। तो उसका जो राइटिंग और ड्राइंग कैपेबिलिटीज है, यू बेटर नो कि आपके जो हैंड्स है दे शुड बी वर्किंग, दे शुड बी कोऑर्डिनेटिंग विद योर ब्रेन, देन ओनली यू आर एबल टू राइट इट प्रॉपरली, यू आर एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली। अगर LSD एडिक्शन होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो बच्चे जो पहला एग्जाम्पल है हेलुसिनेटिंग ड्रग का वो हो गया लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, और लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड के बारे में जो चीज़ें बताई वो याद रखेंगे। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा डेट वुड बी मेस्कालाइन, और जो मेस्कालाइन होता है वो एक स्पाइनलेस कैक्टस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका नाम होता है लोफोफोरा विलियमसी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज मेस्कालाइन। इट इज अनदर हेलुसिनेटिंग ड्रग। तो कई बार तो सिंपल सा सवाल ऐसे डिजाइन हो जाता है कि जो भी गिवन ड्रग है इनमें से कौन कौन से हेलुसिनेटिंग है। तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर द सेकंड एग्जांपल, द नेम इज मेस्कालाइन। अब जो मेस्कालाइन होता है वो ज्यादा पावरफुल हेलुसिनेटिंग नहीं होता है। मेस्कालाइन इन नेचर व्हाइट पाउडरी होता है, इट इज व्हाइट पाउडरी alkaloid. So I was telling you it is not that much potent, but still जो chronic use होगा इसका उससे there would be several ill effect, right?
एक्सट्रैक्ट जब की बात पूछा जाए कि एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, कि जो स्पाइनलेस कैक्टस का टॉप वाला पार्ट होता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टॉप्स ऑफ स्पाइनलेस कैक्टस। उस स्पाइनलेस कैक्टस का नाम होता है लोफोफोरा विलियमसी। उस स्पाइनलेस कैक्टस का नाम होता है लोफोफोरा, I must write the L capital here, Lophophora williamsi. So जो स्पाइनलेस कैक्टस है Lophophora williamsi, that is the source of mescaline. Then ये जो कैक्टस मिलता है ये मेनली ना नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको एंड यूएस में मिलता है। कई बार ना पूछ भी लेता है कि डेट Lophophora williamsi इज नेटिव टू, तो Lophophora williamsi it is native to US and Mexico. It is northern Mexico or yes, it is northern Mexico, western Mexico. I guess northern Mexico is the right one. Please check it when you are watching that lecture. अच्छा, आप कहाँ से चेक करेंगे, किस बुक से? Northern Mexico is the right one. So जो ये प्लांट होता है, जो ये कैक्टस होता है, ये मेनली नेटिव होता है आपका नॉर्दर्न मैक्सिको से, ठीक है। देन इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पियोट कैक्टस, और इसका दूसरा नाम होता है पियोट कैक्टस। एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज हैविंग लो हेलुसिनेटिंग एबिलिटी। इट इज आल्सो नोन एज कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पियोट कैक्टस इज द कॉमन नेम ऑफ, आंसर शुड बी मेस्कालाइन, एज पियोट कैक्टस, एंड इट इज हैविंग लो hallucinating प्रॉपर्टी। तो सेकंड एग्जाम्पल हो गया बच्चे मेस्कालाइन का। जो थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, थर्ड एग्जाम्पल वुड बी साइलोसाइबाइन। जो एक मशरूम से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सो कुछ आपके फंगस, कुछ कैक्टस और कुछ मशरूम, ये सब सोर्स होते हैं आपके हेलुसिनेटिंग ड्रग के। तो नेक्स्ट वुड बी साइलोसाइबाइन, P would be silent, साइलोसाइबाइन। अब जो साइलोसाइबाइन होता है, मेस्कालाइन बताया था कि वो पाउडर की फॉर्म में होता है, और जो साइलोसाइबाइन होता है वो रेजिन की फॉर्म में होता है, वो थोड़ा सा ना लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। तो जो भी फ्रूटिंग बॉडीज होती है मैक्सिकन मशरूम की, नाम होता है साइलोसाइब मैक्सिकैना, उसकी फ्रूटिंग बॉडी से मिलता है साइलोसाइबाइन। तो इट इज ऑब्टेन्ड from fruiting bodies of Mexican mushroom। और इस मैक्सिकन मशरूम का नाम क्या था? साइलोसाइब मैक्सिकैना। तो सिंपली आप तो इसके सोर्स को याद रख लें, वो काफ़ी है कि भाई जो मैक्सिकन मशरूम होता है उससे मिलता है। सॉरी, आई टोल्ड यू कि वो पाउडर की फॉर्म में होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, और इसका जो इफेक्ट होता है वो मेस्कालाइन के जितना ही होता है। तो अच्छा, नहीं लिखा अभी तक। इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉट रेजिनियस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड इट इज़ हैविंग इक्विवेलेंट पोटेंसी लाइक दैट ऑफ दैट मेस्कालाइन। तो बच्चे ये तीन एग्जाम्पल हो गए हेलुसिनेटिंग ड्रग के। अब रियल शुरू करते हैं, दे आर कैनाबिनॉइड्स। अब रियल वाला शुरू करते हैं, एंड दोज आर कैनाबिनॉइड्स, जो आपके हीम प्लांट से मिलेंगे, कैनिबिस सटाइवा। तो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का एक स्केलेटन बना दूंगा यहाँ पर, उसके बाद हीम प्लांट का फोटो बना दूंगा, और 4 अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताऊंगा कि भांग क्या होता है, गांजा क्या होता है, चरस क्या होता है, मैरिजुआना क्या होता है, ठीक है। और फिर जो आपके कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं उन रिसेप्टर पे जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, और आजकल तो स्पोर्ट्स पर्सन भी कैनाबिनॉइड को डॉप कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद कैनाबिनॉइड्स। एक्चुअली दिस लेक्चर शुड बी अबाउट कैनाबिनॉइड्स जो अपने एनसीईआरटी में है, पर ये सब चीज़ें हेलुसिनेटिंग के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। 2 साल पहले एट्रोपा बेलिडोना जो एनसीईआरटी में मेंशन है उससे क्वेश्चन पूछा था। तो जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आई जस्ट कवर दैट थिंग। कैनाबिनॉइड्स। So cannabinoids, these are the product of
heme plant. These are the product of heme plant. Spelling is HEMP. HEMP. Heme plants. और जो heme plant होता है that is your cannabis sativa. इंडिया में जो मिलता है भांग का पेड़ उसको कैनबिस इंडिका भी कहते हैं. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका. कैसा दिखता है? सोना सा दिखता है सर. राइट. तो आई एम जस्ट मेकिंग सर्टेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हेयर. और ये जो प्लांट आपको इसका ना फोटो भी एनसीईआरटी में होगा हमारी. राइट. ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. और ये जो प्लांट होगा डेट वुड बी कैनबिस सटाइवा. जो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको डेट इज एक्चुअली कैनबिस sativa. Is that clear? So you can easily recognize that. Right. If I make a skeleton of cannabinoid molecule, it is quite easy but difficult to draw. Let me give it a try. I am having a benzene ring here. Then from here I am having certain carbon chain like this. Then from here there is incomplete benzene ring. From here I am having a O here. Then let us complete it like this. ये जो स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर बेटा, ये स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल बन जाता है आपका कैनाबिनॉइड. जो स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल बनता है इसको क्या बोलते हैं? OHO के साथ H यहाँ भी लगा देता हूँ. डेट इज नोन एज कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल. और इसको कंप्लीट कर ही देते हैं. राइट. इट वुड बी लाइक दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है कि आपको कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल और मॉर्फिन के ये जो दो स्ट्रक्चर दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में, इन दोनों के साथ कंपेयर करने के लिए आ जाता है. सिंपली एक मॉलिक्यूल दिया होगा, आपको इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेंगे. सो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का जो स्केलेटन होगा डेट वुड बी लाइक दिस. और मॉर्फिन का कैसा होता है वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था. तो जो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल होता है डेट इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर व्हिच आर मेजरली प्रेजेंट इन अवर ब्रेन. दे इंटरेक्ट. आई एम टेकिंग इट आउट बोथ ऑफ देम. दे इंटरेक्ट with the receptor which are present in our brain. It was mentioning here cannabinoid interact with receptors present in brain. Total there are 4 types of cannabinoid. One is bhang, second is ganja, third is charas, which in America is known as hashish, and fourth is marijuana. So 4 types of cannabinoid. प्लांट के अलग अलग पार्ट को यूज करके ये चारों डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. भांग कुछ मेल और फीमेल दोनों से होते हैं, कुछ सिर्फ फीमेल से होते हैं. गांजा, चरस द मोस्ट पोटेंट, एंड मैरिजुएना. अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है. अगर प्लांट के मेल या फीमेल का फ्रेश या ड्राइड लीव्स एंड फ्लोरिंग शूट लेते हैं, फ्रेश और ड्राइड लीव्स और फ्लोरिंग शूट is important here, from of male and female cannabis sativa. तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं भांग. आई रिपीट, फ्रेश और ड्राइड लीव्स या फ्लोरिंग शूट्स ऑफ मेल एंड फीमेल. कैसे यूज होता है भांग? इट इज टेकन orally, either in the form of pakoda. There are certain festivals where that prasad has been used, or either in the form of liquid by dissolving it in milk. It is taken orally in form of pakoda
और विद सर्टेन लिक्विड। क्या इफेक्ट होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट होता है वो बाद में पढ़ेंगे। सेकंड आता है बच्चे आपके पास दिस मार्कर्स ओके। सेकंड आता है आपके पास गांजा। जब गांजे की बात करेंगे सबसे पहले याद रखेंगे जो गांजा है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट से मिलता है। उसका जो ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं गांजा। गांजा जो है वो मेनली कैसे इनटेक किया जाता है, इट हैज बीन स्मोक्ड इन सिगरेट्स एंड इट इज वेरी वेरी पोटेंट एंड इट एक्ट वेरी इंस्टेंटली। इट इज स्मोक्ड विथ सिगरेट, very potent and it act instantly, it act instantly। ठीक है बेटा, जो थर्ड प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं फ्रॉम दैट कैनबिस सटाइवा, दैट वुड बी चरस। जो चरस होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्राइड रेजिनियस एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावरिंग टॉप एंड लीव्स। इट इज फ्रॉम ड्राइड resinous extract from flowering top of the plant। Male and female both are the source of charas, male and female both are the source of charas। अगर पूछा जाए सबसे पोटेंट कौन सा कैनबिस सटाइवा का प्रोडक्ट होता है तो आंसर वुड बी चरस। इट इज most and most potent। Is that clear? It has been smoked with tobacco, it has been smoked with tobacco। I was telling you in USA चरस को बोलते हैं हशीश और उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। in USA चरस is also known as hashish। in USA चरस इज आल्सो नोन एज हशीश और इसका जो पोटेंट वो कंपोनेंट होता है डेट इज 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। कई बार क्वेश्चन में आपको ये THC लिख के दे देगा। THC द मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हाट, आंसर वुड बी चरस देयर। फिर लास्ट आता है बच्चे वो होता है मैरिजुएना और जो मैरिजुएना होता है वो ड्राइड flower and top of leaves of the female only, dried flower and top leaves of female, dried flower and top leaves of female। कई एक साल सवाल पूछा गया था कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं, आंसर वाज भांग एंड मैरिजुएना। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जैसे इसके अंदर होता है 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट में डेल्टा ऐड कर देना। एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। एक क्विक रिवीजन, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट बता देता हूँ। आपके पास 4 तरह के कैनाबिनॉइड्स हैं। पहला है भांग, जिसको आप मेल एंड फीमेल दोनों के पार्ट से कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रेश हो या ड्राइड लीव्स हो या उसकी फ्लावरिंग शूट्स हो। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं गांजा, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल से मिलता है, ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस से। तीसरा पार्ट हो गया चरस, तीसरा प्रोडक्ट हो गया चरस एंड जो चौथा प्रोडक्ट होता है वो होता है मैरिजुएना। आप ये भी याद रखेंगे कि नाउअडेज कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, NCERT लाइन। Nowadays cannabinoids are abused by sports person। अब ये कैनाबिनॉइड्स करते क्या हैं वो पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट दिस कैनाबिनॉइड्स डू, व्हाट आर देयर इफेक्ट। आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर क्यों बढ़ता होगा, ऑब्वियसली ये आपके जो इंसुलिन का एक्शन है उसको अफेक्ट करते होंगे या सेलुलर अपटेक ऑफ शुगर को कम कर देते होंगे।
तो क्या क्या इफेक्ट होता है कैनाबिनॉइड एडिक्शन में? सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। थर्ड, अगर मैं बताऊं, एक यूफोरिया वाली कंडीशन आती है, दे ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग, एक्साइटमेंट, uncontrollable laugh and dilation of pupil. These are three features which has been characterized by the addiction of cannabinoids. तो क्या क्या इफेक्ट होंगे? इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर? रेज इन ब्लड शुगर। देन और क्या इफेक्ट होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और क्या इफेक्ट होगा? स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया वही होता है जो मज़ा आ गया, राइट, जो फेक हैप्पीनेस वाली पार्ट होता है, डेट इज यूफोरिया। उसके बाद आपको बताया मैंने अनकंट्रोलेबल लाफ के बारे में और डायलेशन ऑफ पीपल के बारे में। अनकंट्रोलेबल लाफ, भांग के पकोड़े खाने के बाद आप कई घंटे हंस सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपके जो कंट्रोल्स ऑफ ब्रेन है डेट हैज बीन नॉट रेगुलेटिंग, एंड डायलेशन ऑफ पीपल। ये हो गया बेटा आपके कैनाबिनॉइड्स के बारे में, डेट इज अबाउट योर कैनाबिनॉइड्स। इसके साथ साथ दो और एग्जाम्पल दिए आपके एनसीईआरटी में अबाउट द हेलुसिनेटिंग प्लांट। एक याद रखेंगे, सीड ऑफ दतूरा, स्ट्रोमेनियम एंड एरियल पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलेडोना। एक लाइन में और लिख देता हूं एंड देन दिस पार्ट वुड बी कंप्लीट। देयर आर two more example. This was the, I guess, fourth example. Yes, there are two more example जो हेलुसिनेटिंग होते हैं और जो अपने एनसीईआरटी में है। दतूरा का फोटो भी है एनसीईआरटी में, प्लीज डू रिमेंबर। दतूरा का फोटो को पहचानना है, उसके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दतूरा प्लांट हियर। नेक्स्ट 5 and 6 example. Next example would be seeds of datura, stromanium and aerial part of Atropa belladonna. Seed of datura, stromanium and aerial part of Atropa belladonna, they also show, Atropa plant and datura plant इतना याद रख लेना, they also show hallucination. आगे चल के लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा, कुछ आपकी साइकोट्रोपिक ड्रग होती है जिनकी एक्सिस क्वांटिटी अगर ले ले तो हेलुसिनेशन हो जाता है। कोकेन से भी हेलुसिनेशन हो जाता है, जो एक स्टिमुलेंट है खाली हमारा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका नॉर्मल, दीज आर द नॉर्मल एग्जाम्पल्स ऑफ हेलुसिनेटिंग ड्रग। फिर आपके पास आते हैं थोड़े से एग्जाम्पल विच वी कॉल सिंथेटिक हेलुसिनोजन। Which are the synthetic hallucinogen? One would be PCP and second would be MDMA. PCP and MDMA, these would be two hallucination. Synthetic hallucination, the last part of hallucination here, hallucinogen, I must say. दो सिंथेटिक हेलुसिनोजन होते हैं, एक होता है PCP, एक होता है PCP और दूसरा होता है आपके पास MDMA। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज होते हैं। सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं। PCP की फुल फॉर्म होती है फेनसाइक्लिडाइन पेपरिडाइन। फेनसाइक्लिडाइन पेपरिडाइन। अच्छा, अगर आपने देखा होगा जब हम एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनको कुछ ड्रग दे देते हैं जिससे वो इमोबलाइज हो जाते हैं, कि वो ज़्यादा वॉयलेंट ना हो, ऐसा ना हो जिस ट्रक में आप उसको लेके जा रहे हैं उस ट्रक से उछल के वो भागना शुरू कर दे। तो जो ये PCP होते हैं हेलुसिनेटिंग ड्रग, वो मेनली यूज़ होते हैं वेटनरी मेडिसिन में। और काहे के लिए यूज़ होते हैं? फॉर इमोबलाइजिंग एनिमल। दे आर यूज्ड in veterinary drug medicine to immobilize animals. Question was being asked, that's why I am mentioning here. Question was being asked about PCP,
दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर। ये जो है ना ग्रेनुलर पाउडर की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको एंजल डस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंजल डस्ट। नहीं कोई ड्रग एब्यूज नहीं किया, इट वॉज अ डस्ट फ्रॉम द एंजल। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बिकॉज इट इज व्हाइट ग्रेनुलर पाउडर इन फॉर्म। ठीक है बेटा। देन आप ये भी याद रख लेना, जब अगर आप इसकी हाई डोज कर दें तो उसकी वजह से हाइपर सैलिवेशन होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, फीवर आना शुरू हो जाता है, इनफैक्ट एनिमल कोमा में भी जा सकता है। तो इसका जो हाई डोज है, हाई डोज, देन देयर इज अ ड्रग फॉर यू स्टूडेंट एज वेल। हाई डोज रिजल्ट इन हाइपर सैलिवेशन, it can result in vomiting and eventually it can result in coma. तो hypersalivation, vomiting, coma, these are the common side effect of high dosing of PCP. Fever is very common, right? Then दूसरा आता है बेटा आपके पास MDMA. MDMA is methylene dioxy. MDMA is methylene dioxy मैथ एम्फिटामीन। एम्फिटामीन एक ना सिंथेटिक ड्रग पढ़ाऊंगा आपको स्टिमुलेंट में। तो इट इज मिथाइलिन, सुपरमैन ड्रग बोलते हैं एम्फिटामीन को, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। डाइऑक्सी मैथ एम्फिट एमीन्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, आप चाहते हैं कि मैं ना सोऊं, तो आप एम्फिटामीन्स यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी हेलुसिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो MDMA होता है बेटा, वो एक CNS स्टिमुलेंट होता है। इट इज़ ए वेरी पावरफुल CNS स्टिमुलेंट। देखो कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग मी, वैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यू आर आस्किंग समवन कि आपको एड्रेस करना है पब्लिक को, और आपको ना सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही, आप झिझक रहे हैं, एक इंट्रोवर्सी आ रही है, एक हेजिटेशन है। फिर आपको कोई एक दवाई दे दी जाती है और उसके बाद आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो जितना भी हेजिटेशन वगैरह था वो सब खत्म हो गया है। डेड मेडिसिन, डेड ड्रग कुड बी योर MDMA. It is having hallucinogenic property. It is having hallucinogenic property, but it increases your communication. It is hallucination. It is hallucinogen, but it increases communication abilities. तो कई बार बच्चे ना चुपचाप बैठे रहते हैं क्लास में, कई महीने हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, बोलने को तैयार नहीं है। टीचर के दिमाग में आता होगा, अगर उनको MDMA के बारे में पता है कि आई शुड इंजेक्ट यू विद MDMA, तब जब आप बात करते रहेंगे। और कई बच्चे चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तभी शायद टीचर के दिमाग में आ जाता हो कि हो सकता है नाश्ते में कुछ मिलावट लेके आए हैं। खैर, नो पर्सनल कमेंट्स हियर। देन दैट ड्रग इज वेरी पॉपुलर इन स्टूडेंट्स एंड वी कॉल दैट एक्सटेसी ड्रग। वी कॉल दैट एक्टेसी ड्रग। That drug is एक सवाल पूछा गया था, which of the drug is known as ecstasy drug? Answer to that question is MDMA. तो it is very very popular in students, very popular in students. तो बच्चे यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा हेलुसिनेटिंग ड्रग के बारे में। तो हमने तकरीबन 6 एग्जाम्पल पढ़े हैं नेचुरल हेलुसिनेटिंग ड्रग एंड डेरिवेटिव्स के, और 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं आपके सिंथेटिक ड्रग के। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में आई विल बी कवरिंग स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में थोड़ा टी कॉफ़ी के बारे में बता दूंगा, एंड देन जो कोका एल्कोलॉइड्स बच्चे हमारे कोकेन, वो पार्ट उसमें कवर करेंगे। एंड आई विल बी आल्सो कवरिंग दैट टोबैको एडिक्शन, निकोटीन एंड सिगरेट स्मोकिंग द नेक्स्ट लेक्चर। देन विल बी हैविंग 1 लेक्चर ऑन द अल्कोहल टॉक्सिसिटी टू बॉडी, देन जो नॉर्मल अल्कोहल टॉक्सिसिटी टू बॉडी। तो कल के जो 2 लेक्चर हो गए डेट वुड बी दिस वन। उसके बाद साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द 10th आवर चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड एंड यू विल बी हैविंग 4 days टू रिवाइज। मैं तो कहता हूँ रिविजन अभी शुरू कर दें, एंड आई बिलीव कि आप लोग सब तैयार हैं। दोज हु हैड नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी भी 40% व्यूअर अनसब्सक्राइब्ड ही चल रहे हैं, वो दिखाता रहता है यूट्यूब। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, एंड आई विश यू वेरी गुड लक। अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहें। क्लास 4 नाउ इज़ डिसमिस्ड। थैंक यू।